Sandeep Gupta, Deputy Director Ma'am Mrs. Divya Aswal Gupta, our Honorable Chief Guest Colonel Abhishek MAMGAI, Commandant Sir Mr. Sudhir Verma, Principal Foundation Course 2nd Mr. D.N. Thaplial, members of the staff and my dear friends. We extend a very gracious welcome to our special guest of the day, Colonel Abhishek MAMGAI. I would request Cadets Deepika and Kashish to honor our guest. Colonel Abhishek was born into a family of military men, where his father, grandfather and maternal grandfather were all from the army. And so, Colonel Abhishek had a natural inclination towards the army. Colonel Abhishek is an alumnus of the RIMC, NDA and IMA. During his academics, he was under the guidance of our Honorable Principal Sir, Mr. D.N. Thaplial. The officer volunteered and was commissioned into 1st Paramilitary Special Forces in December 2002. During this tenure, he extensively served and operated in Kashmir Valley. In 2005, the officer sidestepped from Special Forces to Infantry due to injuries. In Infantry, Colonel Abhishek served in the Siachen Glacier, Assam, UN mission in South Sudan, Sikkim, Arunachal Pradesh and Kashmir, thereby having a rich experience of operations in various kinds of terrains and challenging scenarios. In staff, Colonel Abhishek served in an armored headquarters, in a command headquarters, in the training headquarters and as deputy commander in 2 brigades. Colonel Abhishek commanded the 18th Battalion of the Mahal Regiment. During the battalion, he got the unit citation and went to Lebanon on a UN mission. The officer has been awarded the Chief of the Army Staff Commendation, 2 General Officer Commanding Commendations, UN Force Commander Commendation and Raksha Mantri Appreciation for various deeds of distinguished service and bravery. His hobbies include cycling, reading and he is a student of yoga. Colonel Abhishek took a premature retirement in February 2024 and is settled in Dehradun. I would now request our guest of honor, Colonel Abhishek MAMGAI, to grace the dais and share his words. So. Can you all hear me? Yes, sir. Right from my, when I was a small child, I always had stage fright to stand in front of people and talk. Then the army, it gave me the opportunity to become a commanding officer and then I had to stand in front of 850 people and not only talk, also lead them. So part of that fright went down. But today again I am feeling very fearful. Standing here in front of such energized and motivated lot of students. I am very, very grateful to Sandeep sir that he called me here to give you this talk, and I was very honored to have been received here by Mr. Thaplial. Thaplial sir हमारे RIMC में टीचर होते थे, मतलब मास्टर होते थे. He was a section master and a lot of respect he commands from all the batches which he has seen in RIMC. So I have been, can we have the presentation? So I always like to start my presentation by asking people that why are we here today? Anybody? आप में से कोई भी बता सकता है कि हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? अच्छा एक बात ये बताइए, आप में से इंग्लिश के साथ कितने कंफर्टेबल नहीं हैं? ऑनेस्टली बोलिए. ठीक है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन या अपना जो मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ वो हिंदी में रखूँगा. हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं बताइए. अच्छा, सबसे पहली बात, वी विल हैव एन इंटरैक्शन. ये एक तरफा नहीं होगा, हम इंटरैक्शन करेंगे. मंजूर है सभी को? और मैं अभी तक 2 जगह ऐसी सिमिलर प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ. दोनों NGOs थे. एक जगह उनको 80% मार्क्स मिले फॉर इंटरैक्शन, लास्ट वाले उसमें 95% मार्क्स मिले उनको फॉर इंटरैक्शन. लेट अस सी हाउ मच यू गाइस गेट. ओके, तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं आज? कोई भी? इन्होंने बोला इंस्पिरेशन लेक्चर फ्रॉम मी, Guiding us towards our dreams. ओके, गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर ड्रीम्स.
हम सब एक कॉमन ड्रीम की तरफ देख रहे हैं, वो है डिफेंस फोर्सेस। क्लियर? ओके। सो जो मेरे को दायरा दिया गया था, स्कोप दिया गया था प्रेजेंटेशन का, वो था कि एनडीए में और आरआईएमसी में आपने पहली बात ये बोला गया था कि ओएलक्यू क्या होता है ये बताइएगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जिसके लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है। फिर मैंने आरआईएमसी और एनडीए में क्या ओएलक्यू हासिल किए, आर्मी क्या है और आर्मी सिविल से कैसे अलग है। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन का दायरा है जिस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। एंड मैं कोशिश ये करूँगा कि लास्ट के 20 मिनट में दूंगा आप लोगों को सवाल जवाब मेरे से पूछने के। सो देखिए, द वेरी फैक्ट कि संदीप सर ने यहाँ पे मेरे को खड़ा करा है आपको ओएलक्यू के बारे में बताने के लिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में बताने के लिए, दिस इटसेल्फ शोज़ कि इस एकेडमी का जो विजन है वो सीमित नहीं है, वो असीम है। क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जब मेरे को सर ने बोला, मेरे को मैसेज आया था कि आपने ओएलक्यू के ऊपर बात करनी। तो ओएलक्यू एक ऑफिसर के लिए जो कि, या एक ऑफिसर जो इंस्पायर, जो बनना चाह रहे हैं, और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं ऑफिसर के लिए ट्रेन हो रहे हैं कि आप डिफेंस में जाके ऑफिसर बनेंगे। डिफेंस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल थ्री। तो उस समय ओएलक्यू क्या महत्व रखेगी आपका, वो है आज की प्रेजेंटेशन। एंड ऑफ कोर्स अबाउट द आर्मी। सो इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ओएलक्यू का फुल फॉर्म सभी समझ गए? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। कोई इसका हिंदी में मेरे को वो बता सकता है, मतलब एक शब्द में क्या है ओएलक्यू, जो हम सबको डिफाइन करता है, जो हम सबका वजूद बनाता है। संस्कार, हमारे संस्कार कहाँ से आते हैं? गुड। किसी ने बोला पेरेंट्स एंड टीचर्स। एंड अगर आप थोड़ा और फिलोसफिकल उसमें घुसना चाहते हैं तो आपके पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म में आपके माँ बाप और आपके टीचर्स जो आपको सिखाते हैं, और प्लस आप जो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो सब कुछ मिलके आपका संस्कार बनाते हैं। तो सिंपल तरीके से समझने का ये तरीका है कि ये आपके संस्कार हैं। क्या ये बदले जा सकते हैं? क्या ये आप में पैदा किए जा सकते हैं? इसका बड़ा सिंपल एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ या ना। लेकिन ओएलक्यू क्या है ये जानने के लिए हमें दो चीजें इसके पहले समझना जरूरी है कि रैंक क्या है। ऑफिसर, एक ऑफिसर जो है, चाहे पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, रेलवेज हो, इट इज अ रैंक। सबसे पहली बात, रैंक का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली, अथॉरिटी। आपको एक अथॉरिटी दे दी गई है टू मेक अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल डू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इट टू डू इन अ विलिंग मैनर। इस बात से सहमत हो सभी? yes, कि रैंक ये है। ऑफिसर क्या है? कोई भी एक ऑफिस, ये जो दर्जा है ऑफिसर का, ये क्या है? ये कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और हाँ, टू लीड। ओके, टू लीड एंड हाँ, capable person who will get responsibility. Okay, you all are getting there. पहुंच रहे हो आप जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। और ये देखिए, to be an officer is an expectation. किसकी एक्सपेक्टेशन? किसकी उम्मीद? हाँ, वेरी गुड, कंट्री की। और किसकी उम्मीद? टीम की उम्मीद। एग्जैक्टली। और किसकी उम्मीद? बहुत ही बड़ी, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यू हैव आंसर्ड ऑल दोज थ्री एक्सपेक्ट। वो तीन लोगों की आपने उम्मीद बता दी है जो एक ऑफिसर से होती है, जिनकी एक ऑफिसर से उम्मीद होती है। सबसे पहला, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू।
अगर आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर हैं तो इंडियन आर्मी आपसे क्या वो रखेगी उम्मीद? एनीबडी? टू लीड द टीम। और इससे थोड़ा और बोलिए बोलिए, दिल खोल के बोलिए। डिसिप्लिन, ओके Sense of responsibility. ओके Fulfill all duties towards the country with full honesty. ओके। सो इन्होंने बोला फुलफिल ऑल ड्यूटीज। सो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इज कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हुक्म दिया वो ग्राउंड पे अमल हो जाए। व्हाट डू योर मेन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? जो आपके अंडर जो लोग हैं वो क्या आपसे उम्मीद रखेंगे? गाइडेंस, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा और, एक्सपेक्ट यू टू बी परफेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम द लीडर, ओके। इन्होंने लीडर शब्द डाल दिया है, सो दैट्स अ हिंट, वो आप लोगों के लिए हिंट है, लीडरशिप। सो जो आपके लड़के हैं उनकी आपसे उम्मीद एक ही रहेगी कि ये हमारा अच्छा लीडर बने। मुश्किल वक्त में ये मुंह ना फेर ले। Who is this person? पीवीसी मिला इन्हें, नेशन का सबसे उच्च अवार्ड, दुश्मन के सामने ब्रेवरी दिखाने के लिए। और मरने से एक दिन पहले इन्होंने बोला था दिल मांगे मौत। आपने पिक्चर देखी होगी। What does the society expect from you? किसी ने बहुत बढ़िया बोला था अभी बीच में कि आप ही ने शायद बोला था कि the country expects something from you. Yes. So the country expects that you keep the country safe and do not misuse your power. So एक ऑफिसर होने का जो उम्मीद है आपके कमांड, यानी कि आप जिसको कमांड करेंगे, आपके देश और आपकी सोसाइटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन, वो जो चीज़ है वो सब मिलके बनती है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सो ये एक मेरे को डायग्राम टाइप का मिला था इंटरनेट से, थोड़ा ठीक ठाक लगा मुझे कि आपके माइंड, हार्ट, गट्स और जो आपके लिम्स है, लिम्स माने कर्म इंद्रियां, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन, आपके जवान और आपकी सोसाइटी के प्रति अगर अलाइंड हो, वो है OLQ। अब OLQ के हम बिल्कुल स्पेसिफिक उदाहरण देखेंगे। अच्छा, उसके पहले क्या OLQs किसी के अंदर जैसे इंजेक्शन ठोकते हैं या दवा खिलाते हैं, कैन OLQ बी जनरेटेड और इज इट इनबॉर्न? कैसे, कोई उदाहरण दे सकता है इसका? जो उदाहरण का जो हिंट है वो इस पीछे वाली फोटोग्राफ में है। ये रामायण का एक सीन है कि क्या किसी के अंदर OLQ के गुण डाले जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं, जिसके लिए आप लोग बैठे हुए हो यहाँ बाय द वे। ओके, उसका सवाल का जवाब है ये। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि क्या था? हाँ, पहले क्या था? डकैत था। और एक महर्षि के साथ वो 5 मिनट बैठा। उस महर्षि ने उसको 1-2 सवाल पूछे कि क्या जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं या नहीं है। और वो गया, उसने अपनी मैडम से पूछा, उसने अपने फादर से पूछा कि आर यू विद मी इन दिस और नॉट, एंड दे सेड नो, एंड दैट्स वेयर ही स्टार्टेड राइटिंग द रामायण। सो अगर एक डकैत रामायण जैसा इतिहास लिख सकता है तो क्या एक इंसान का चरित्र बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? तो आपने जो आपकी यहाँ ट्रेनिंग चल रही है उस पर आपने भरोसा करना है कि हाँ, हमारा जो यहाँ पे जो भी हमें सिखाया जा रहा है उससे हम वो OLQs इम्बाइब कर सकते हैं जो SSB में हमसे पूछा जाएगा या देखा जाएगा या टटोला जाएगा। क्लियर? अभी हम
उदाहरण देखेंगे ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ये एक पर्सनल अनुभव है मेरा आरआईएमसी और एनडीए का, कि वहाँ जो मैंने सीखा वो मैंने ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए मैंने फोटोग्राफ्स भी वो डाली हैं, अपने आप को बढ़ाने चढ़ाने के लिए नहीं, पर आपको पर्सनल एग्जाम्पल देने के लिए कि कैसे जो मैंने आरआईएमसी में और एनडीए में सीखा वो मेरे को फौज में काम है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आरआईएमसी में सीखी और एनडीए में सीखी वो था कमराडरी। कमराडरी का कोई समझते हो आप सब? कमराडरी जो नहीं समझता हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। ओके, डाउन। कमराडरी का मतलब है टीम वर्क, एक दूसरे के लिए मर मिटना। तो ये मेरा जूनियर था और ये हमारी कोई दौड़ हो रही थी, टेस्ट था हमारा, और मैं सीओ था। मैं आराम से आगे आ सकता था, आई वॉज ऑलवेज अ गुड रनर, बट देन ही वॉज अ वीक गाय, सो वी बोथ रैन टुगेदर एंड आई इंश्योर्ड दैट ही पास्ड। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जिसे आरआईएमसी ने और एनडीए ने कुछ सिखाया जो कि उसने फौज में इम्प्लीमेंट किया, और उसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। प्लीज़ इसको दूसरे तरीके से मत लीजिए कि मैं अपनी बढ़ा चढ़ा के कुछ वो कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं है यहाँ। मैं आपको जो ग्राउंड पे हुआ मेरे साथ वो दिखा रहा हूँ। लीडरशिप, आप ने लीड बाय एग्जाम्पल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको एक टास्क दिया गया आपकी यूनिट को और आप बोलते अच्छा ठीक है फलाना फलाना तुम लोग जाओ और ये चेक करके आओ, वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है अगर आपने एक बेहतरीन ऑफिसर बनना है तो। विल पावर, मेरे घुटने को ऑपरेशन हुआ था 2018 में, एंड फिर भी मेरे को बहुत दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता था पैदल चल के, और लिटरली मेरे को हर 3-4 घंटे में एक ब्रूफेन खानी पड़ती थी और पैर में पूरा वो नी सपोर्ट वगैरह दौड़ लगा के चलना पड़ता था। नहीं करता तो मुझे कभी ग्राउंड की जो रियलिटीज़ है वो कभी मेरे समझ में नहीं आती कि ग्राउंड में क्या होगा। प्लस जब आपके अंडर जो लोग हैं वो देखते हैं कि हाँ यार ये बंदा कोशिश कर रहा है, उनको सिर्फ यही चाहिए कि तुम कोशिश करो, उन्हें ये नहीं चाहिए कि तुम फर्स्ट आओ, उन्हें चाहिए कि तुम कोशिश करो। इंटेग्रिटी, एनडीए में एक अपॉइंटमेंट होती है जो आप 6 टर्म में आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, CQMS सार्जेंट, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सुबह बिस्किट्स आती है उसके पास, शाम को उसके पास स्नैक्स आते हैं, कोल्ड कॉफ़ी आती है, वो आराम से अपने लिए रख सकता है, अलग से कुछ रखते भी होंगे। दैट इज़ वेयर यू ट्राई टू लर्न कि एक कप कॉफ़ी के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। You getting me? Yes, sir. So these are the first 4 OLQs that I imbibed from RAMC and NDA. To care for your men. ये हम लोग पीटी के बाद प्राणायाम कर रहे थे, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि साहब थोड़ा सा हमारा पीटी बहुत टफ हो रहा है, तो ऐसा कुछ करो ताकि हमें पीटी के बाद थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो ये हम सब लोग प्राणायाम कर रहे थे। सर्वाइवेबिलिटी, यू लर्न हाउ टू सर्वाइव। इन एनडीए देयर वाज एक बार पानी खत्म हो गया था, वहाँ पूरा धूल मिट्टी में गेम शेम खेल के आ रहे हो, कभी रगड़ा पट्टी भी मिल रहा है, अब नहाने के लिए पानी नहीं था, तो हमने जो कमोड होता है उसका जो टंकी है उसमें से हमने छोटे मग से पानी निकाल के बाल्टी में डाला, हम उससे नहाए। तो यू हैव टू सर्वाइव यार, मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए, यू हैव टू सर्वाइव। ये फोटोग्राफ है यूएन में, हम लोग एक पोस्ट पे थे और वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को साउथ सुडान की आर्मी ने मिसाइल से गिरा दिया, तो हमारे सारे सप्लाई बंद हो गए। तो ये हमने खुद एक पानी बनाने का जरिया बनाया, जिसमें ये ऊपर वाइट वाली टंकी में चारकोल है, उसके ऊपर बैंडेजेस हैं, तो बैंडेजेस थोड़ी सी मिट्टी ले लेता है, फिर चारकोल से पानी वो सब होके नीचे आता है। तो हम लोगों ने अपने लिए ये पानी बनाने की सुविधा बनाई। हाथ पे हाथ बैठ के भी बैठ सकते थे कि यार अब क्या होगा, पानी नहीं है, खाना नहीं है। फिर ऐसा टाइम आया जब सारे वो भी ख़त्म हो गए मसाले, तो जो अचार है, अचार को दाल में मिलाते थे, दाल उबाली और उसमें अचार मिला दिया,
थोड़ा सा टेस्ट आ गया। सो सर्वाइबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न इन योर ट्रेनिंग एकेडमीज, जो बाद में काम आती है ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिस्पेक्ट, सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्टर्स की रिस्पेक्ट, जो हमें सबसे ज़्यादा जो सिखाई गई RIMC में थी, जो गुरु शिष्य परंपरा है वो वहाँ पे बहुत डीप तरीके से, डीप रूटेड तरीके से स्थापित की गई है। एंड उसी से हमने सीखा कि जो हमारे JSO साहिबान होते हैं फौज में, ये जो बंदा है इसके दोनों घुटने टूटे हुए हैं, फिर भी इसने 54 साल की उम्र में अपनी कंपनी के लिए हॉकी खेली। तो कैसे नहीं आएगी इनके लिए रिस्पेक्ट हमें। जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं RIMC में, NDA में, हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनका बहुत अलग रुतबा है। तो ये रिस्पेक्ट जो है ये आप एकेडमी में सीखोगे। टू फॉलो, ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं ये उस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे जिसमें बिपिन रावत जी भी शहीद हुए थे। तो ये ब्रिगेडियर लीडर हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर। तो एक तो है गुड लीडर बनना, लेकिन गुड लीडर वही है जो अच्छी तरीके से फॉलो भी कर सकता है। क्लियर? एंड लास्ट में सोसाइटल बिहेवियर, यानी कि आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं जब भी आप बाहर जाके ऑपरेट करेंगे, वो सबसे जरूरी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वही आर्मी की इमेज बनाती है या बिगाड़ती है, डिफेंसेस की। सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं इसमें। इंडियन आर्मी के 2 रोल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी रोल है बाहरी घुसपैठ से, थ्रेट से हमारे देश को बचाना, और सेकेंडरी रोल है इंटरनल थ्रेट से हमारे देश को बचाना। पर मेरा मेन आइडिया है आपको ये वाली स्लाइड समझाने का, बिकॉज इससे आपको समझ में आएगी कि आपका हुनर क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आप मान के चलो, जो तीनों हैं उसके ये 3 हिस्से हैं। एक जो लड़ते हैं, एक जो लड़ने वालों को सपोर्ट करते हैं, और एक जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सप्लाई, मेडिकल, रिपेयर, वो सारी चीज़ें। सो कॉम्बैट आर्म्स में एक है जो जमीन पे लड़ते हैं, एक है जो ये टैंक के अंदर बैठ के लड़ते हैं, ये भी बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, और तीसरा है जो ये एक गाड़ी है, इसको ICV कहते हैं। इसके अंदर लड़के बैठते हैं, दुश्मन के उर्ली तरफ जाते हैं, वहाँ बाहर निकलते हैं और फिर दुश्मन को नकारा करते हैं। तो इन तीनों का बिल्कुल जो है बिल्कुल आमने सामने वाला इंटरेक्शन है, लड़ाई है। अब इनको पीछे से सपोर्ट देते हैं आर्टिलरी वाले, गोला बारूद डालते हैं जो दुश्मन पे, जब आप जाते हो उसके पहले और उसके दौरान भी। इंजीनियर्स हैं जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो वाटर पॉइंट्स बनाते हैं, जो हेलीपैड्स बनाते हैं, जो माइन फील्ड्स क्लियर करते हैं। कम्युनिकेशन, जब आप लड़ने जाते हो तो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन के बिना लड़ाई इम्पॉसिबल है। और सर्विसेज, यानी कि जो आपको खाना और पीना और पेट्रोल देते हैं, जो आपकी गाड़ियाँ ठीक करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो आपकी जान बचाते हैं जब आपको इंजरी होती है, एंड लास्ट में जो गोला बारूद फौज के लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब इस स्लाइड को सिर्फ आप मात्र 4-5 सेकंड के लिए अपने मन में बिठाइए। हर एक का अपना अपना हुनर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपके सामने मैं रिटायर होकर खड़ा हूँ, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछो कि तुम किस आर्म में जाते, अगर दोबारा मौका मिलता, मैं सिग्नल्स में जाता। क्योंकि फौज में आने के बाद जब मैंने महसूस किया कि एक सिग्नल रेजिमेंट या जो कोर ऑफ सिग्नल्स है, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उसके बिना फौज ठप है। एंड वर्मा सर यहाँ बैठे हुए हैं, उनका पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस है वो डिपेंड ही कम्युनिकेशन पे करता है। और यदि कम्युनिकेशन ना हो तो आप बहुत मुश्किल है कि आप लड़ाई जीत पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ 21 साल सर्विस करने के बाद बोल रहा हूँ कि काश मैं सिग्नल्स में होता, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप वो गलती करो कि आप भी बाद में बोलिए काश मैं ये करता या वो करता। आपके पास ऑप्शन है, या तो बिल्कुल आगे फ्रंट लाइन पे लड़ो,
जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको एक और, AMC, डॉक्टर्स। हमें पता है यार, हमें कितना अच्छा लगता है जब किसी बंदे की जान बचाते हैं वो, और फिर वो बंदा भी और हम भी उस डॉक्टर को जिंदगी भर याद रखते हैं कि यार अगर आपने उस दिन बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके नहीं इनको बचाया होता तो क्या होता। तो प्लीज आप सोचिए अपने मन में कि आपको NDA या नेवल, जहां भी जिस भी एकेडमी में आप जाएंगे उसके बाद, और ये चेंज होता रहता है। मैं NDA में था तो मैं राइडिंग में अच्छा था, तो मैं नेशनल लेवल राइडर बनना चाहता था। फिर मैंने कुछ देखा, स्पेशल फोर्सेस के लड़के आए, उनका एक्शन देखा, तो मैंने बोला मैं स्पेशल फोर्सेस में जाऊँ, तो मैं स्पेशल फोर्सेस में चला। तो इस चीज़ पे आपने चिंतन करना है हर रोज, हर रात सोने से पहले कि आप अगर तो फौज में जाओगे तो क्या करना चाहते। ओके, नाउ स्टार्ट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइफ इन द आर्मी, और ये कैसे सिविल से अलग है। देखो ये थोड़े से एकेडमिक पॉइंट्स हैं कि एक प्रोफेशन को अच्छा क्या बनाता है, किसी भी प्रोफेशन में। तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो प्रोफेशनल एडवांसमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एडवेंचर है। लेकिन मेरे हिसाब से जो फौज को उसके लायक बनाता है वो है आपका सेंस ऑफ प्राइड, जो आपको एक दिल में फीलिंग होती है कि हाँ मैं नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का हिस्सा हूँ और मेरे से लोगों की उम्मीद है। एडवेंचर भरपूर है फौज में। आपको मैं आगे फोटोग्राफ दिखाऊंगा फटाफट। दुनिया भर का ट्रैवल करने को मिलेगा आपको, और ऐसी ऐसी जगहों ट्रैवल करने को मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वो भी मैं आपको फोटोग्राफ्स में अभी दिखाऊंगा। ये उसका एक एग्जाम्पल है, एडवेंचर एंड ट्रैवल दोनों का एग्जाम्पल है। सियाचिन ग्लेशियर, इतनी धसी हुई, मतलब उसमें भी आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो एडवेंचर का एडवेंचर और ट्रैवल का ट्रैवल। ये जो हमारी पोस्ट थी तकरीबन 200-300 मीटर ऊपर थी, एक बार हाथ छूटा और आपके बचने का कोई चांस ही नहीं ग्लेशियर में। सो ऐसे रोप पकड़ के नीचे भी आते थे, ऊपर भी जाते थे। तो ये वाइट वाला पूरा ग्लेशियर है, और ये ऐसे पूरी चट्टान है, सीधे बिल्कुल आप देखिए खड़ी चट्टान है। ये UN में कुछ हुआ था और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसकी मैं बात कर रहा था, और कुछ डेड बॉडीज हम निकालने गए थे और हमें बीच जंगल में पटक दिया कि अब तुम डेड बॉडीज निकाल के लाओ। और जब पटक दिया उसके बाद बोला हम आज नहीं आ रहे, कल आएंगे तुमको लेने के लिए। और हमारी सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई कि अब रात यहाँ शेरों के बीच में, और वो वाइपर्स हैं वहाँ बहुत सारे, एक बार काटने से 15 मिनट्स एंड यू आर डेड। बट आई फिर फौज आई हमें लेने के लिए। फिर ऐसी जगहों में आप, इतनी सुंदर जगहों में जो है आप कैंपिंग करेंगे। UN की बात है ये वहाँ के साउथ सुदान की बात कर रहा हूँ मैं। साउथ सुदान में पैसा नहीं चलता, वहाँ की करेंसी है गाय। तो लड़की की शादी होनी है, लड़का 200 गाय देगा, आपको AK-47 खरीदनी है, आप 15 गाय दोगे। सो इतना, और ये जो इन्होंने अपने शरीर पे मल रखा है, ये राख है, राख। इससे दो काम होते हैं, मच्छर नहीं आते, और दूसरा जब नहाओगे तो ये साबुन का काम करता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलती हैं। ये वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी, तो ऐसे लोगों के साथ हम लड़ रहे थे जिनके पास ऐसे ऐसे टाइप की गाड़ियाँ और गन्स और पागलपना था। ये आसाम में एक बिरसा मुंडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप, उसका लीडर था ये। इसके साथ बैठ के ऐसे ही हम लोग बातें करते थे और कितना कुछ सीखने को मिलता था कि ये क्यों लड़ रहा है, इसको क्या चाहिए, इसकी मजबूरियाँ क्या है। फिर आप ऐसी ऐसी जगहों में जाओगे जहाँ इतने सुंदर सुंदर सनसेट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको गुरुडोमार लेक है सिक्किम में, नॉर्थ बंगाल में। अच्छा, फौज जो है एक बड़ी फैमिली, ये सारे हमारे लड़के हैं होली खेलने। तो आप बेशक घर में होली खेलने नहीं जाओगे, लेकिन अपने लड़कों के साथ, अपनी टीम के साथ आप होली खेलोगे और भरपूर मजे उठाओगे। जो दोस्ती आपकी फौज में बनेगी वो जिंदगी भर की दोस्ती है। वो ऐसा नहीं है कि आप आज 1 महीने बाद किसी को भूल जाओ, वो जिंदगी भर की दोस्ती है।
फौज से बड़ी सेक्युलर कोई बता सकता है सेक्युलर क्या होता है? तो फौज में जो मंदिर होता है उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता है सर्व धर्म स्थल। वहाँ पे सारे टाइप के, एक ही छत के नीचे सारे टाइप के मजहब होते हैं। तो ये हमारी यूनिट जो थी महार रेजिमेंट, उसमें गणपति विसर्जन का बड़ा वो होता है। तो इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें खालसे भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं और इसमें हमारे मराठी भाई भी हैं। जो स्टेटस है फौज का, एयरफोर्स का, नेवी का, ये है अभी भी हमारे देश में करार है। आप एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर होंगे, आपकी अच्छी पे होगी और आपका जो रुतबा होगा सिविल सर्विसेज में वो भी बढ़िया होगा। जो आपको आपके ऊपर जो लॉ होगा वो सिविल लॉ से थोड़ा सा अलग है। आप आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अंदर आ जाएंगे। उसके नुकसान भी हैं और वो आपको इम्यूनिटी भी देता है। पुलिस वाला आपको ऐसे ही पकड़ के नहीं ले जा सकता जब तक आप सर्विस में, जब तक कि आपने 3 जो बड़े कांड है वो ना किया, मर्डर, रेप या अटेम्प्ट टू किल। प्रोफेशनल ग्रोथ है, कमीशनिंग के बाद भी बेतरतीब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको टू ग्रो। नॉट जस्ट कि आपने एनडीए पार किया, आई में चले गए, फौज में चले गए, कहानी खत्म। उसके बाद भी भरपूर आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटेंजिबल्स मतलब जिन्हें हम तोल नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फौज के बारे में जो कि हम तोल नहीं सकते लेकिन जिनका बहुत बड़ा मायना है। कोई भी एक तरफ से आप पढ़िए, फिर ऐसे एक लाइन में पढ़ते रहेंगे। Your men will be your greatest wealth in life. या योर मेन यानी कि जिनके साथ आप फौज में टाइम बिताओगे, आपके साथ जो ऑफिसर्स हैं, जो जेसीओज हैं, जो जवान हैं, वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत ही अलग दुनिया है। आप सिविल वर्ल्ड से बिल्कुल आइसोलेटेड हो। केवल जब छुट्टी जाते हो तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि सिविल वर्ल्ड क्या है, वो भी सरसरी तौर पे। तो आपकी अपनी दुनिया होगी और वही दुनिया में आप सीमित रहेंगे। एंड वो दुनिया, मेरी बात मानिए, बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया है। नो प्रिटेंस, नो प्रिटेंस का मतलब हाँ, नो फॉल्स एक्टिंग। मतलब अगर मैं फौज में अपने दोस्त से मिल रहा हूँ तो मैं कोई नेटवर्किंग के लिए नहीं मिल रहा हूँ, जो सिविल में होता है ज़्यादातर कि आप नेटवर्किंग के लिए मिल रहे हैं कि कल ये मेरे क्या काम आएगा। फौज में ऐसा नहीं है। फौज में जो दोस्ती है, जो मिलाना है, वो सब इसलिए है क्योंकि आप दिल से जुड़ना चाहते हैं। टफ डिसीजंस इन्वॉल्विंग लाइफ ऑफ अ पर्सन, कई बार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसको लेने ना लेने से किसी की जान पे असर पड़ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक पोर्टर बीमार हो गया था हमारे सियाचिन ग्लेशियर में और उस दिन वहाँ एवलांच वार्निंग्स आती हैं कि अगर आज निकलोगे तो एवलांच के आने का हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है। तो उस दिन वेरी हाई रिस्क था, लेकिन फिर भी हम 8 जने उसकी बंदे को स्ट्रेचर पे लेके निकले और भगवान की मेहर रही और हम उस दिन बच गए। सो यू हैव टू टेक दोज डिसीजंस। High expectations of the society. I will not explain this. 24/7 job. I will not explain this. Organization stands by you. हम सब इंसान हैं, हमसे कभी ना कभी गलती हो सकती है, बट डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी चीज़ है, यदि हम गलती करते हैं तो आपके साथ हाथ पकड़ के आपका खड़े होंगे यदि आपने वो गलती एज ए गलती करी, और यदि आपने वो गलती एज एन इंटेंशन करी है तो उतना ही बड़ा फिर पीछे से लात भी पड़ती। द डाउन यानी कि वो क्या है, मतलब जो ठीक नहीं है या जो डिसएडवांटेजेस है। कमिटमेंट, तो ये एक कमिटमेंट वाली नौकरी है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अभी 2 बज गए मैं चला घर। अगर आपका कोई जवान आपकी किसी प्रॉब्लम के साथ आएगा और आप बोलते हो अब तो 2 बज गए, ऑफिस टाइम खत्म, ऐसा नहीं है। फैमिली लाइफ सफर्स, कितने यहाँ पे डिफेंस बैकग्राउंड वाले जिनके मदर फादर या कोई भाई बहन, आपने कई बार देखा होगा कि
पिताजी छुट्टी आ रहे हैं और आते आते कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो फैमिली लाइफ डज सफर, हर बार शिफ्टिंग होते रहती है, हर 2 साल में आप शिफ्ट होते रहते हैं। ACR system. एक गलत रिपोर्ट मिलने से जो है कई बार ऐसा आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, एंड जब आप रिप्रेजेंट करेंगे और अगर आप सही हैं तो आपका जो रिपोर्ट है वो सही कर दी जाएगी। Constant move. मैंने बता दिया था, Conscious risk to life. कॉन्शियस रिस्क टू लाइफ। क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है हिंदी में? हाँ, मतलब आप चूज करते हो, आप अपने मन से चूज करते हो कि हाँ मैं ऐसा एक असाइनमेंट पे जाऊंगा जहाँ हो सकता है कि मेरी जान को खतरा हो। और ये फोटोग्राफ के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करूंगा कि जब आप विदाई ले रहे होते हैं और जब आपको इतना आदर सम्मान मिलता है, तब आपके समझ में आती है कि हाँ यार, दिस लाइफ, दिस करियर वॉज वर्थ इट। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से जो भी सवाल जवाब है अगले 10 मिनट तक मेरे से आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। ओके, इनका सवाल ये है कि आप पैरा रेजिमेंट में थे तो उसका प्रोबेशन पीरियड क्या है? अच्छा, पैरा रेजिमेंट के 2 भाग हैं, एक है स्पेशल फोर्सेस और एक है नॉर्मल पैरा बटालियन। तो स्पेशल फोर्सेस जो है उसका प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का है, जिसमें आप 3 महीने प्रोबेशन करते हैं, 1 महीने आपके जंप्स में जाते हैं। और जो नॉर्मल जो पैरा रेजिमेंट है उसमें 1.5 महीने का है, तो आप 1.5 महीने प्रोबेशन करते हैं और 1 महीने आपके जंप्स में जाते हैं। नेक्स्ट, After becoming an officer, our first priority become a country. Then what was our next priority? Our colleagues or our family? चेटवुड मोटो करके एक चीज़ है IMA की, तो उसमें सबसे पहले इट कम्स कंट्री, देन कम्स योर मेन, एंड देन लास्ट में योर ओन सेल्फ। You have tell about the leadership quality. Suppose if we have get an opportunity to do some task and some mistake would happen in doing between the task and we have no time to correct it, then what we have to do at that time? जब आप अपना कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप उसको 2 चीज़ें मद्देनज़र में रखते हुए कर रहे हैं। नंबर 1, आपका इंटेंशन क्या है, आप किस सोच के साथ कर रहे हैं उस टास्क को, और दूसरा वो टास्क आप सिखाए हुए तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अगर सही हैं और इसके बाद कोई चीज़ घट जाती है तो फौज आपका हाथ पकड़ेगी। फौज माने डिफेंस फोर्सेज के जो भी आपके सीनियर हायरार्की है वो आपका हाथ पकड़ेंगे। Sir, as you tell that there is external fight and internal fight, so what is the difference between external fight and internal fight? एक्सटर्नल फाइट वो है जैसे पाकिस्तान आप पे आके हमला कर रहा है, और इंटरनल फाइट वो है जैसे नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, JNK में जो टेररिज्म जो चल रहा है वो अंदरूनी लड़ाई है देश की, और उन अंदरूनी दस्तों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एनिमी करार किया है, इसीलिए आर्मी उनके साथ लड़ रही है। इसका एक दूसरा एग्जांपल नक्सलवादी आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एनिमी करार नहीं किया है, इसलिए वो एनिमी नहीं है। कल को अगर बोलते हैं कि ये भी एनिमी है तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा इंटरनल थ्रेट के उसमें। और बताइए। In the para probation period, the attrition rate is 80%. What's the reason behind it? जो स्पेशल फोर्सेज है और जो पैरा जो है उसमें आप वॉलंटियर होके जाते हो, उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो रिक्वायरमेंट्स है उनका लेवल बहुत ऊंचा होता है, तो वो हर कोई नहीं उसको कीप अप कर सकता है, तो इसीलिए वो रेट थोड़ा सा कम है, एट्रिशन रेट ज़्यादा है। So and do we get re-attempts to get in the para? या वॉलंटियर आई थिंक थ्राइस 3 बार आप वॉलंटियर कर सकते हैं, एंड पहली बार में ऐसा भी होता है कि आप पहली बार करते हैं आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आप उस पर वर्क करते हैं और आप सेकेंड टाइम जाते हैं और आप क्लियर कर जाओगे डेफिनेटली। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये है कि आप अपना मन बनाइए कि आप वो जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज, इसमें से किस में जाना चाहते हैं। ये लड़के जो हैं अभी से ही आई कैन मेक आउट दैट दे वांट टू जॉइन दी पैरा रेजिमेंट। कोई उसमें अगर वो नहीं है, हार्म नहीं है। अगर आप AMC में डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप सप्लाई में आगे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, उसका मज़ा ही कुछ और। जब आपको ऊपर से कॉल आएगा, मतलब आगे फॉरवर्ड पोस्ट से कि थैंक्स यार तूने मेरे लिए फ्रेश सब्जी भिजवाई। और
So how was your preparation for NDA? How it started and how it goes? How was my preparation for NDA? देखिए एनडीए की तैयारी तो हमारे आरआईएमसी में होती थी, तो रिटन्स की तैयारी तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती थी। उस समय एसएसबी कोचिंग का इतना प्रचलन नहीं था, तो हमारा बैच है, शायद हमारे से पहले वाला जो बैच था उनका पहली बार ये एसएसबी ट्रेनिंग का शुरू हुआ था। एंड मोटा मोटा आरआईएमसी का जो पूरा ट्रेनिंग करिकुलम है वो इस तरीके से है कि आप अपने आप ही एसएसबी के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल रिटर्न पास करने की ज़रूरत होती है। So how to change our personality from zero to officer-like qualities? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, हाँ, कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी इस हिसाब से चेंज। सबसे पहले तो इन्होंने जो बोला कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरे को चेंज होना है, वो 80% आपने वहाँ हासिल कर ली, और 20% वो है ये आइडेंटिफाई करना कि कमी क्या है, एंड देन उसको उस पर काम करना। Sir, how to deal with an officer or colleague who has opposing ideals to us? देखिए हाउ टू, इनका क्वेश्चन ये है हाउ टू डील विद ऑफिसर्स हु हैव अपोजिंग आइडियाज टू यू। सो नाउ देयर आर 3 थिंग्स, आइदर दैट ऑफिसर विल बी योर सीनियर, योर कॉन्टेम्प्रेरी, या आपसे जूनियर। तो यदि सीनियर है तो आप 2 मिनट उसके साथ वो कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, बट करना वही पड़ेगा जो आपसे सीनियर ने बोला है, क्योंकि उनका कुछ तजर्बा आपसे ज़्यादा है। जो आपका कंटेम्प्रेरी है उसके साथ आपको मुक्केबाजी करनी, मुक्केबाजी भी करिए, जो आपसे जूनियर है उसको आप समझाइए। नेक्स्ट Sir, there are many ups and downs in the life of a defense officer. So, what is the most important inspirational source for such a kind of defense officer? ओके, ये कह रही है कि फौज में आपके काफ़ी अप डाउन होंगे, तो जो डाउन जब होगा तो क्या है वो इंस्पिरेशन जिससे आप काम करेंगे। वो इंस्पिरेशन बड़ा सिंपल है, जो आपको टास्क मिला हुआ है उस टास्क के प्रति 100% निष्ठा, अगर आप वो अपने दिमाग में फोकस में रखेंगे तो आपका काम चलेगा। और इसी के साथ अभी हम बंद करेंगे, इसके बाद यदि कभी हमें मौका मिलेगा देन वी टेक ऑन मोर क्वेश्चंस, एंड वेरी गुड क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम योर साइड। आई हैड टू रश थ्रू माय प्रेजेंटेशन बिकॉज थोड़ा सा टाइम कम था, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर व्हाटएवर जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं, एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड स्पीक। एंड अलग से बात कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir. I would like to request our honorable guest, Colonel Abhishek MAMGAI, to give away cash prizes of ₹1,000 to the cadets who scored above 90% marks in class 12, making everyone proud. Please give a round of applause to Cadet Deepak. Cadet Deepak was the first batch student. एक दिन आपसे हम इसकी बात कराएंगे, राइट? जो स्टूडेंट्स हैं, राइट? Please give a round of applause to Cadet Paul Purukul. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.